दे पीपल फेल्ट दैट सर ये खाने से हमको इतना एनर्जी आ गया, हमको भूख भी नहीं लगा और इतना एक्टिव रहा. Yes. सो नो कुक, नो बॉयल, नो ऑयल. आपका टाइम काम ही बच गया कुकिंग करने का वो का. So hello viewers, I have with me a very very interesting person, a scientist, entrepreneur, and a true idea and content creator, Dr. Chandrasekhar Biradar ji. Um, uh, Chandrasekhar ji has been in multiple countries from America to Egypt to all the places. Now he is well settled in Bangalore, and he has a lovely house he has built. He's a guy who builds things. He's like, Kannadigas are famous for that. Our engineering great Dr. Vishweswaraya ji, he was a pioneer in building, and Chandrasekhar ji kind of has the same lineage. Please have a seat. You can sit. And he builds things from scratch. And we will be hearing a couple of stories. I'm sitting here with Moti, a beautiful, very obedient dog puppy. And dog and cat both lives together in this environment. Typically, Sanatana Ashrama kind of a concept. So, Chandrasekhar ji, welcome. And आप बताइए ज़ीरो जो आप बता रहे हैं बिल्डिंग का, समथिंग लाइक दैट, क्या है वो कॉन्सेप्ट? पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, एंड देन विल या. So Sirajji, first of all, thank you so much. All the way coming from here in the morning, so driving through the city, and much appreciated. And your vision and uplifting the rural, the spirit and economy and ecological sustainable living. I think that's very interesting. But I think that's what you started the goal group to bring this up. I think that's very interesting. So as you start with that one again, so idea coming back to India is that one, so that back to Bharat and what we can do and our knowledge we learn about. Okay, I travel across the world, all the continents, and in about 50 plus countries, and lived in across the America and Europe and Africa and South Asia and Middle East and Eurasia. So that gives a really very good interesting. Wherever I go, that the way people living, the way they grow and how they cultivate, how they're living, that's when the focus. And also always go and spend the time in the rural areas, right? So that's what the exposure. So when coming back to India, that when I'm looking to the like I see why people are wanted to come to the cities, right? So they're living in the villages. जी. So whenever I travel from the airport to the go to taxi, then asking the first question asking the driver is that, so where coming from village? आपके पास कितना land है? So always telling that अरे मेरे पास सर हमें 10 एकड़ है, 15 एकड़ है. Yeah. अरे इतना Then why are you doing 15 this? एकड़ Yeah. छोड़ के मतलब why ड्राइविंग कर रहे हैं? True. सर उसमें तो कुछ उगाते नहीं, मतलब कोई प्रॉफिट नहीं होता. मैं ड्राइविंग किया तो मुझे कम तो 50-60 हज़ार तो बच जाता है. सो तो मोर देन हमारा फार्मिंग है. मैं फार्मिंग तो ठेके में दे दिया, नहीं तो लीज में दे दिया, कहीं तो खाली पड़ा हुआ. Right. बट सो एटलीस्ट आई इकोनॉमी. देन आई सेड when I was living there in the back in America, I was going 237 vegetables. जी. And इतना लोग आते थे. So I asked all my friends in Oklahoma and New Hampshire, Dallas, they're coming. So every weekend they भर के जाते थे. इतना छोटा जगह में we can go so much. यार एक एकड़ में बताओ, started calculating कार्बन फुटप्रिंट एंड फूड फुटप्रिंट, वाटर फुटप्रिंट. एक बंदा, एक फैमिली, एक हम दो, हमारे दो और पेरेंट्स, यूजली ऑलवेज कंसिडर 6 लोग. करेक्ट. 6 लोगों के लिए हमको कितना चाहिए? मैं देखो तो क्वार्टर एकड़ काफ़ी होता है. अच्छा. राइट, इफ यू लिव इन द सस्टेनेबल लिविंग पे गए तो देन उसी देख के देन आई स्टार्टेड द फार्मिंग. देन वी स्टार्टेड गोइंग मल्टी लेयर फार्मिंग. उसके बारे में बता देता हूँ मैं. देन हाउ व्हाई कांट वी बिल्ड सच अ फार्मिंग सिस्टम एंड नेट जीरो. राइट, इंडिया हैज द टारगेट ऑफ 2070. वहाँ तक तो क्या रुक नहीं पाएंगे क्योंकि दैट्स टू फार अवे टू डू दैट. हाउ कैन वो नेट जीरो हम कितना जल्दी मतलब अचीव कर सकते हैं? Then I started that. What is the required the roti, kapda, makan? That is the 3 major things, right? So what we have a land, we grow the multifunctional agroforestry, fruit-based the farming. I started in my village में 60 by 40 साइड में 50 तरह के पेड़ लगा दिए. हर तरह के फल एनी गिवन सीजन में एटलीस्ट 2 फ्रूट्स, 2 वेजिटेबल और कुछ हर्ब्स होना चाहिए. नाम बताइए फ्रूट सब सो वी हैव इन द गांव में तो जो है लगाए. सो तो जो भी ड्राई एरिया में आता है. जी. सो लाइक वी हैव ए चिक्कू है, देन अमरूद है, जी.
देन वी हैव ए सीताफल है, रामफल है, देन जैकफ्रूट है, जामुन है, देन कोकोनट है. So these are the major. Then sapota. ठीक है. Then we have a berries है, star fruits है. Then we also in that climate because of microclimate change हो गया. Then वो अरेकनेट भी डाल दिया. So then we have the bitter leaf भी डाल दिया. Then herb भी आ गया. So सारे जो चे. Then the regular daily में हमको जो मिलता है वो बनाना. जी. बनाना पपाया तो हमेशा रहेगा. बनाना पपाया अमरूद. So given location any time of the year वो हमेशा रहेगा. Yeah. वो तो कॉमन रहेगा. Then we have the seasonal vegetables. So 2-3 तरह के मैंगो पिकल के लिए, खाने के लिए अलग अलग. जी. So they एक 50 तरह के the within the 100 किलोमीटर में जो ग्रो करता है, if you adopt into the very small area in the layer में, so that it will occupy the like जंगल में जो पौधे होते हैं, Right. so that 6-7 लेयर पे रहता है. Okay. So all are living healthy. The same model adopted. Okay. So that we can grow in छोटा सा एक जगह में उतना ग्रो कर सकते. तो then I said, then what is required? Food. You made the food, right? What is the required food? Then I started like we also did experiment living with the frugivorous. Food में कैसे जी सकते हैं. सुबह सुबह उठ गया. अभी गांव में गया था. I took the farmers to village just to show that what they did it, right? So सुबह गया. Then वो थोड़ा खेत में घूम के रूम अराउंड थोड़ा काम किया. Then वो एक पपाया खा लिया और एक रामफल आधा इतना बड़ा होता रामफल. So आधा खा लिया तो पूरा ब्रेकफास्ट हो गया. Full, Then yeah. थोड़ा काम किया. Then we went to the डुबकी लगा दिया उसमें. खेत में एक पॉन्ड है. आपका नहा लिया. Nice. Then आराम से पेड़ के भी थोड़ा सा ध्यान करके. Then we went to other thing. The lunch पे एक कोकोनट काट लिया. उस काट के then we have थोड़ा सा उसका नारियल पानी पी लिया. Then नारियल का मलाई खा लिया. वो लंच पर हो गया. और 2-3 गाय है उसका दाय के दूध आएगा तो शाम को थोड़ा दूध में हल्दी डाल के वो पी लेता. आपका डिनर भी हो गया. सो दैट दे पीपल फेल्ट दैट सर ये खाने से हमको इतना एनर्जी आ गया, हमको भूख भी नहीं लगा और इतना एक्टिव रहा. Yes. सो नो कुक, नो बॉयल, नो ऑयल. आपका टाइम काम ही बच गया कुकिंग करने का वो का. सो देन दैट इज व्हाट दे स्टार्टेड दैट वन. हमको एक 6 लोग रहने के लिए हमको एक्चुअली एक क्वार्टर एकड़ काफी होता है. So for 6 people आप एक क्वार्टर एकड़ जमीन. ठीक है. सो दैट वन स्टार्टेड ओके. एक फूड का एक मीट हो गया. ठीक है. देन वी कैन पुट द सोलर. गर्म गांव में एक बनाया उसका सोलर लगा दिया. जी. राइट. सो योर एनर्जी हो गया क्योंकि लॉट ऑफ द सोलर इज कमिंग फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस. उसका 20 to 60% ट्रांसमिशन लॉस होता है. जी. राइट. बट इवन एनर्जी प्रोड्यूस रूफ टॉप पे हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी हो गया. देन पानी का. देन रूफ हार्वेस्टिंग कर लिया. उस गाँव नीचे एक बड़ा सा एक वाटर स्टोरेज करके. देन वाटर स्टोरेज के बारे में बताइए. सो अभी क्या है, सो लोग सोचते हैं मतलब फिल्टर आके आ गया सिटी में. बट एंटायर सिटी सप्लाई किस में आता है? वो प्लास्टिक में आता है. राइट. अभी हम चाय पी रहे थे, कॉफी पी रहे थे, यार प्लास्टिक में नहीं पीना बोल के थोड़ा सा हम थोड़ा सा वो उसके बारे में सोचते हैं. बट एंटायर सप्लाई आता है हमारा पानी प्लास्टिक में आता है. फूड सप्लाई आता है पॉलिथीन में आता है ना. सो मैंने कहा सो दैट्स वन थिंग. देन ऑल द प्रोसेसिंग होता पानी. राइट. अभी जो बारिश का पानी छत के ऊपर गिरता है ना, उसको नीचे थोड़ा सा हमारा सेंट्रीफ्यूगल ऑटोमेटिक वाटर फिल्टर होता है. सो दे रिमूव द डेब्रिस जो निकलता है. सो बेसिकली छत के ऊपर क्या डस्ट पार्टिकल तो रहेगा. दैट्स बेसिकली अदरवाइज नथिंग विल बी देयर. सो दैट यू कीप द रूफ में चूना लगा के पुट द लाइमस्टोन लगा के साफ करके रख दो. फर्स्ट वाटर थोड़ा सा ऑटोमेटिकली होता है. फर्स्ट फ्यू मिनट्स विल गो. देन नेक्स्ट वाटर गो टू द ग्राउंड पे चला था. मतलब ग्राउंड में वो बड़ा वाटर टैंक बनाया हमने. ओके. व्हाट इज द कैपेसिटी? कैपेसिटी नियरली अबाउट लाइक एक है 35,000 लीटर है. 35,000. अंदर 75,000 लीटर. So you using the syntax tank or you build concrete? We build a proper पत्थर से. Very good. Okay. उसको then सीमेंट लगा के उसके बाद you put 2 to 3 coating of rock limestone. ना because of that is the क्या होता है ना, so that तो सीमेंट में जो भी कंटेमिनेशन वो नहीं आएगा. Then we put the one copper lining. Copper lining for what? So 1 inch copper lining लगा दिया तो ना क्या था, copper is become the पानी को the structure बना लेता है. क्योंकि जिस वाई घर में क्या करते हैं हम कॉपर बॉल में पानी रात को रखते हैं सुबह पीते हैं ना. सो कॉपर रिलीज होता है उसमें. देन सेकेंडली द थर्ड थिंग हमको क्या करना है, वो बिल्कुल एयर और लाइट नहीं चाहिए. हाँ. सो द वेरी एकदम एयर टाइट बनाना चाहिए. एयर टाइट. सो ऐसा कर लिया तो 10,000 ईयर्स तक मतलब 10 ईयर्स तक 10 साल तक वो पानी कुछ नहीं होता. कितना लंबा रखेगा उतना मिनट 10 सालों तक दैट वाटर विल नॉट बी डैमेज. सेकेंडली हम क्या करते हैं, महीने में एक बार थोड़ा सा वो पच कर्पूर होता है ना, कैंपर. यस, कैंपर कपूरिया या कैंपर उसमें लगा थोड़ा दीजिए. जस्ट लाइक दैट यू कैन थ्रो. जस्ट थ्रो इट दैट वन सो दैट विल कीप द वाटर वेरी मेडिकेटेड वाटर
एंड वाटर इतना, क्योंकि उसमें कोई कंटेमिनेंट्स नहीं, Correct. पानी No sunlight. जस्ट एंटर इनटू सो स्टोरेज रहता, और दैट वाटर इज यू कैन एंटायर फैमिली के So you don't have to then bring it to your RO system and process it. No. Okay. बिकॉज दैट इज द मोस्ट, आरओ में क्या होता है, सो इट रिमूव ऑल द मिनरल्स, आरओ पानी में मिनरल भी निकल जाता है, सो द आरओ पानी पीने से क्या होता है ना, so आपको बोन से व्हेन द वाटर बिकम्स सो लाइक डिस्टिल्ड अच्छा. and it is sucks the mineral from the body. Ask all the people, they are experts in the orthopedics and all things. So RO पीने से then they take, because the water is such a reverse osmosis जाता है ना, that remove every the mineral from the river, but first water first start suck from the whatever available. अच्छा. So that's the what the RO the पीते हैं ना, you're losing the mineral. But of course RO comes with additional मिनरल ऐड करते हैं ना, उसको मिनरल का फिल्टर होता है. Correct. Yes. Then you can re-adding the mineral back, जो पानी So no point. You're removing the natural thing and adding an artificial process. Because pollution But then pollution, correct, ठीक है. बैक्टीरिया रहता है, जी. so that's what reason they wanted to filter it, और उसके साथ सारे निकल जाता है, जी. क्योंकि some of the mineral particles, even the like a bacterial particle smaller than mineral particle, जी. so bacterial निकालना है तो mineral निकल जाता है, so basically उसमें then we have to taste build करने के लिए चारकोल मिनरल का वो the candle लगा दे, so that you can mineral आ जाता है. बट वो बारिश का नेचुरल पानी एटमॉस्फेयर से निकल के छत के ऊपर जाके नीचे जाएगा, तो मतलब So the capacity जो आपने बताया वो कितने रेन में फिल हो जाएगा? One day. See, the one thing is that like depend upon how much is the How much is flow rain, area, right? correct, So we have put the 1480 something square feet as of the harvestable 1480 square So we feet. also put it like a roof पूरा कलेक्ट होके है कि वो एक जगह में आ जाता है, दो टैंक है, so just in case sometimes contaminants हो गए तो ठीक है. में आ जाता है, so first we'll leave it वो यूज करने के लिए कपड़ा धोने के लिए हो जाता है. So if in my area, where Bijapur, what we call is a dry area, so the 500 millimeter annual rainfall होता है, right? 500 millimeter वो उतने एरिया पे it is enough to the store the tanks. That's the 6 लोगों के लिए पूरा एक साल के लिए हो जाता है. Wow. कपड़ा धोने के लिए, इसके लिए ऊपर सोलर पे लगा, so that you have आपका फूड भी वही हो गया, एनर्जी वाटर भी हो गया, Food, energy, water. So this is if you address these at least energy or and water. If you city में if you want a smart city बनना है तो जो पानी गिरता है, look at बेंगलुरु में nearly about 1800 पानी गिरता है, इतना घर में पानी, we not required to bring any water. Correct. अभी क्या है, कावेरी से 200-300 किलोमीटर से पानी आ गया यहाँ पे, नहीं उसमें लिफ्ट करना पड़ता, एलिवेशन फ्रॉम द कावेरी जो भी इतना 2-3 किलोमीटर से दूर से आता है, एंड बेंगलुरु बेटे हाई एलिवेशन पे उतना एनर्जी लॉस होता है, उसमें हो गया. उसमें सेकंड में क्या होता है, देन वो प्यूरिफिकेशन करना पड़ता है, नन ऑफ द रिवर वाटर इज द प्योर नाउ, यू कैन नॉट ड्रिंक द, कोई स्ट्रीम का पानी कोई रिवर का पानी नहीं पी सकते, क्योंकि इतना यूट्रिफिकेशन होता है, पोल्यूशन होता है. वी लॉस्ट द ट्रेडिशन ऑफ द गांव में हम छोटा स्ट्रीम पे हम जाके उसमें नहाते थे, पानी पीते थे. वी लॉस्ट एंटायर फ्रीडम, नन ऑफ द सिंगल स्ट्रीम we have the pure enough to drink. सही बोल रहे हैं आप. No? So in order to bring that, I will बताऊँ how we can bring that one. So first we'll addressing the what is called a net zero living. Net zero, ठीक है. Net zero living छोटा सा जगह में आपका जो fruits, फल, vegetable, nuts, spices, condiment जो भी चाहिए, जो उतने में हो जाएगा. जी. ठीक है. Then quarter acre में और half acre में वो the fruit tree लगाएंगे. ठीक है. Then नीचे ground cover में forage grasses, forage fodder grasses लगा दिया तो आपको 1-2 गाय रख सकते हैं. अच्छा. राइट. अभी क्या है, आपको आप बताएंगे सर आई डोंट नो अबाउट द गाय का रखने के लिए और लेबर नहीं है उसको खिलाने के लिए, उसको साफ करने के लिए और वो गोबर निकालने के लिए कोई नहीं. आई कम आउट विद द काउ सेंचुरी मॉडल. अच्छा है ना, उसका भी एक अलग है, बट वो भी बता देते उसमें क्या है ना, सिंपल. अभी आपने पेड़ लगा दिया, ठीक है, पेड़ के नीचे काफी घास लगा दिया, सो दैट तो अभी 1-2 गाय छोड़ दिए तो वहाँ पे, तो गाय इज वेरी इंटरेस्टिंग, स्पेशली द इंडियन देसी काउ है. दे कैन नॉट पूरे चरा के नहीं जाएगा बेड बकरे जैसा. अच्छा. थोड़ा सा यहाँ खाएगा, थोड़ा सा वहाँ खाएगा, देन गोबर इधर लगाएंगे, देन डू द यूरिनेट समवेयर एल्स, सो दैट दे आर गो फर्टिलाइजर स्प्रेड कर रहे हैं. सो दे फर्स्ट ऑफ ऑल रिसाइकलिंग द ट्री लीव्स एंड द घास पत्ते खाएंगे, है ना. देन वी फॉडर स्पीसीज रहेगा, समर में वो भी काट के डालते वो भी खा लेगा. सो द बैलेंस तो घूम चराते हैं, फ्री ग्रेजिंग बोलते हैं ना. सो फ्री ग्रेजिंग में जाके देन दे ईट देमसेल्फ
देन पेड़ के नीचे सोएंगे। देन वो एक हमने एक छोटा सा द वाटर द ऑटो डिस्पेंसर होता है जो उसमें थोड़ा सा लगाया तो बॉल रहता है ना, ठीक है। सो तो गाय पानी पिए तो पानी कम होता है, देन अपना भर जाता है। सो दैट आपका पानी 3-4 दिन में एटलीस्ट 5-6 बार उनको पानी पिलाना पड़ता है। ओके। देन एटलीस्ट 3 बार तो खिलाना पड़ता है। देन एटलीस्ट 2 बार उसको साफ करना पड़ता है पूरा वेयर दे आर स्लीपिंग। सो दैट नाउ वी आर लिविंग दैट फ्री। आपको सारे 3 काम खत्म हो गया। उसका साफ करने के काम खत्म हो गया, खिलाने के काम खत्म हो गया, पानी पिलाने के काम खत्म हो गया। Nice. सो दे लिविंग सच अ फ्रीली लाइक ए काउ सेंचुरी में, जंगल में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वो एनिमल रहते हैं। और वो जो फॉर्डर आप बताए उतने कम एरिया में टू काउस के फीड के लिए इनफ है कि यू हैव टू 1 ब्रिंग। एकड़ में 2 काउ दे कैन मस्त रहता है एकदम। ओह वेरी गुड। या सो दैट 1 एकड़ में 500 फ्रूट ट्रीज रहेंगे जी। अलग अलग तरह का। आई पुट ऑल द मिक्स फ्रूट ट्री का लाइक पूरा जंगल जैसा बना दिया जी। देन उसमें काफ़ी मल्टीपर्पज़ रहता है, क्योंकि समर में घास नीचे नहीं हो तो देन यू कैन जस्ट 2-3 ब्रांचेस काट लो, छोड़ दो वहाँ पे, वो पूरा खाएंगे, देन वो गोबर बन जाएगा। टेक एनी टेक्नोलॉजीज ऑफ द क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट, इतना प्रॉब्लम हो रहे हैं जी। जस्ट द एटलीस्ट 6 महीने लगता है कंपोस्ट बनने में। कोई क्रॉप रेसिड्यू है, पराली हो, लीफ हो, उसका कंपोस्ट बनाने में 6 महीने लगता है। राइट। वही गाय को खिला लिए तो, बैल को खिला तो, मतलब कैटल Correct. खा लिए तो 24 घंटे में बायो फर्टिलाइजर बनता है। 24 घंटा में। ओके। दैट्स हाउ आवर सिस्टम, एंशिएंट सिस्टम है। गाँव में लाइक व्हेन माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ द काउज इन द खेत में, काउज एंड द लाइवस्टॉक बेस्ड फार्मिंग रहता था, सो दैट बुल रहते थे। मैंने कहा ताता तो व्हाई सो मेनी थिंग, वो बोलते थे यार दीज आर द फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज। या सो बिकॉज ऑफ द एंटायर वो क्रॉप रेसिड्यू दे मैनेजिंग दैट वन, दे गोबर बन जाता था, खेत में डालते, एक बार ऐसा फर्टिलाइजर डालते 10 साल लगाने की जरूरत नहीं पड़ता था। सो दिस इज द सिस्टम। सो दैट ऐसा सिस्टम बना लिया तो 1 एकड़ में एक फैमिली दे लिव लाइक ए रिसोर्ट। अच्छा। दे हैव मे बी और लाइक वहाँ पानी के लिए टैंक रहता है, नहीं तो कुआं रहता है। सो उसके ऊपर एक कुटीर जैसा बना लो, राइट। I am living in the village doesn't mean that living in the dirty huts. No, we can build such a beautiful huts. Correct. You can grow your own trees there, like सागवान हमने करके उससे कर, you can grow your own trees, build a very beautiful huts and thatch बना के, so many like जैसे ऋषि रहते थे, ऐसे एक पक्का नाइस घर बना लिया और गोबर लगा के उसको पूरा स्मेयर किया तो वो एकदम इतना बढ़िया बनता है जी। हाँ। देन आपका सुबह उठ गया, फल खा लिया, खाने चक्कर नहीं, सो लाइक दैट अब खाने का हो गया। पानी में हार्वेस्टिंग द वाटर, पानी का हो गया, हार्वेस्टिंग सोलर वो भी हो गया। और वो क्या चाहिए गाँव में रहने के लिए? यू आर लिविंग लाइक अभी आई एम द लाइक a club Mahindra member who used to go there. So we pay so much money to the membership and वहाँ जाके we are living the same set of the natural living in the गाँव में फार्मिंग कर सकते। It's called फार्म एज ए रिसोर्ट मेरा मॉडल है। समझ गया। सो दैट आपको कैसे 1 एकड़ में आपका 10 एकड़ है तो 1 एकड़ को टर्न इनटू दिस वन। अभी वो बिहार में सो दैट लाइक नीरज खेती नीरज, सो दैट व्हेन स्टार्टेड दैट लॉन्ग अगो। सो देखो 1 एकड़ में वो 1 लाख का फायदा भी होता है एंड वो दूध का वो जो भी रेसिड्यू आता है वो गाय को भी खिलाते थे, वो भी हो जाता है। तो आपका जो मॉडल जो आपने जीरो वो बताया उसको आप सम अप कीजिए कि उसमें 4-5 चीज़ आपने जो बताया, कॉस्ट बताया, 6 फैमिलीज के बारे में बताया एंड यू नो हाउ इजी इट इज़ टू इम्प्लीमेंट, कितना टाइम लगेगा टू। नो टाइम तो नहीं लगेगा क्योंकि अभी लोग यूजुअली पेड़ के मतलब मरा देते, कृषि जंगली खेती करना है तो टाइम लगेगा बोलते हैं। Correct. हम क्या करते हैं उसका थोड़ा फास्ट ग्रोइंग, अभी मोरिंगा है, देन सस्पेन ग्रैंडिफ्लोर, दीज आर एडिबल है, पत्ते भी खा सकते हैं, फूल भी खा सकते हैं, पॉट भी खा सकते हैं क्योंकि इमीडिएटली वो 6 महीने में खड़ा हो जाएगा तो 18 फीट बन जाएगा। सो दैट दोज आर फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज है, उनको अडॉप्ट करेंगे बीच बीच में। देन उसमें आप जो रेगुलर क्रॉप ग्रो करते हैं वो भी चलता रहेगा, सो दैट यू आर नॉट अफेक्टिंग द व्हाट एवर ग्रोइंग देयर। सो दान और अनाज जो भी ग्रो करते हैं वो भी रहेगा, उसके साथ ये फल भी रहेगा। देन अभी 1 साल में थोड़ा अमरूद की तरह आ जाता है, बट यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट एक जो भी पेड़ लगेंगे अच्छे से प्रोडक्शन 1-2 साल लगता है। बट देयर इज सम अदर स्पीशीज यू कैन ग्रो, कैन प्रोड्यूस लाइक ड्रमस्टिक है, 1 साल में शुरू होता है आपका जो शुरू हो जाएगा उसमें। ऐसे कॉफी स्पीशीज है सो दैट दे कैन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इमीडिएटली, 1 साल में आपका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। देन दे ऐड लॉट ऑफ द बायोमास ऐड करेंगे, उसके साथ अलग अलग फ्रूट ट्रीज लगाएंगे ना, दीज आर फास्ट ग्रोइंग नरिशिंग ट्रीज है ना, उसको प्रोटेक्ट करेंगे बाकी ट्रीज को। देन जो भी रेसिड्यू आपको वहाँ छोड़ेंगे और एवरी 3 मंथ्स उसके काट के छोड़ेंगे, वो पूरा कवर हो जाएगा, मल्च हो जाएगा। सो तो 1-2 साल में आपका
मिट्टी एकदम द फर्टाइल हो जाएगा, कार्बन सिक्वेशन ज़्यादा हो जाएगा, देन बाल एक्टिव बढ़ेगा, सो दैट वी आर नॉट टिलिंग द सॉइल, ठीक है। राइट. जो भी और the pre-monsoon dry sowing, that's what you can see, that's also in the popular आंध्र में तो APCN में कर रहे हैं. So that's a similar old ideas. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लास्ट क्वेश्चन इस सेगमेंट में रहेगा कि अगर कोई ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम या ऐसा जो अगर किसी लोग इंटरेस्टेड हों, वुमेन हो या मैन हो हमारे विलेज में अगर इंटरेस्टेड हों तो वो आपसे कैसे रीच आउट करेंगे, ट्रेनिंग का क्या प्रोसेस है, हाउ मच? So that is the reasons we started. It's called a global green growth. जी. The idea of the global green growth is that anything we do, so we reduce the impact on environment. Whether we are weighing in the class or eating the food, and then मकान बना रहे, but then we are the steel manufacture कर रहे. Every level हम कितना कम कर सकते. फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज टारगेटिंग अबाउट 10 ट्रिलियन इकोनॉमी, बट उसके साथ पोल्यूशन भी बढ़ेगा, इम्पैक्ट बढ़ेगा. बट हाउ कैन यू गो दैट विदाउट इम्पैक्टिंग दैट ग्रीन ग्रोथ, सो दैट यू आर रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट बट स्टिल द मेकिंग, दैट्स कॉल्ड वायबल, इकोनॉमिकली वायबल, इकोलॉजिक सस्टेनेबल मॉडल है. उसके ऊपर हम वी आर डूइंग दैट वन. सो इसी में सो लाइक लॉट ऑफ रिक्वेस्ट कमिंग दैट वन. सो आई यूज्ड टू गो टू लॉट ऑफ फार्मर्स, स्टार्टेड नंदी कृषि, लाइवस्टॉक बेस्ड फार्मिंग. दैट्स लाइक यू हर्ड अबाउट द सेव सॉइल, सदगुरु शुरू किए थे. बट हाउ सेव सॉइल, right? Then I look back. If you bring back the livestock back to the farming, we have more livestock in the factories, not in the farm. So that the bullock-based farming, if you come it back, they are just as recycling agents of the residues. Yeah. One thing. Yeah. When the if you have the guy or bullocks in the farm, लोग पेड़ लगाएंगे क्योंकि उनको समर में फॉडरिटी चाहिए, उनका शेड चाहिए, चाय चाहिए, सो इसके लिए पेड़ लगाएंगे. सो द bringing the livestock back to farming, you are introducing the trees back to the farming. So when the only two things they can increase soil fertility is the animal का manure और पेड़ का पत्ती. करेक्ट. दोनों आ गए तो soil improve हो जाएगा. That's what I call 5 approach. I call 5 highs. जी. High biodiversity, that means high crop diversity, high tree diversity, high life diversity. High biodiversity in the landscape leads to क्या होता है? High carbon sequestration. Then so the मिट्टी अच्छे हो जाएगा, फर्टाइल हो जाएगा, हेल्थी हो जाएगा. ज़्यादा बारिश से ज़्यादा कार्बन सिक्वेशन हो जाएगा. दोनों ज़्यादा कार्बन सिक्वेशन सॉइल में रहे तो आपको ज़्यादा पानी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ग्रीन वाटर, जो भी बारिश का पानी गिरता है, सो दैट धरती में मतलब यू कैन होल्डिंग द सॉइल, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ता है. देन दे स्टार्ट पर्कुलेटिंग इनटू द बेस फ्लो. जो सरफेस में जाता था पानी वो दैट बिकेम अ सब सरफेस फ्लो. देन रिवर स्टार्ट रीफ्लोइंग, रिज्यूनिस्ट बन जाएगा. तो तीनों हो गए तो आपको प्रोडक्टिविटी बिकम नेचुरल. ठीक है. राइट. अब नेचुरल बन गए तो देन प्रोडक्टिविटी, खासकर कल्टीवेशन कम हो गया, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गया, तो सोशल इंक्लूजन बन जाएगा. सो दैट्स व्हाट अप्रोच यू टॉकिंग अबाउट. तो व्यूअर्स आप सुन रहे थे, स्पेशली द पूर्वांचल स्टेट है, the northern state of northern state of India, like eastern UP, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, वहाँ के अगर पॉलिटिशियन एंड पॉलिसी मेकर्स अगर आप लोग सुन रहे हैं तो आपका जो स्टेट है वो एग्रो बेस्ड स्टेट होना चाहिए. वी शुड नॉट बी कम्पीटिंग विद द इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु. आपका जो स्ट्रेंथ है योर सॉइल है, आपके पास नेचुरल रिवर्स है, आपके पास चंद्रशेखर जी के पास जो मॉडल है पॉलिसी मेकर्स फॉर यू, इट कुड बिकम सेल्फ सस्टेनेबल. आपको बड़ा बड़ा इन्वेस्टर्स की ज़रूरत नहीं है, आपका पूरा गांव खुशहाल हो सकता है. द होल माइग्रेशन ऑफ द विलेज से रूरल से अर्बन, दैट कुड बी स्टॉप्ड एंड एवरी विलेज विल बी अ रिसॉर्ट जहाँ पर एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, हेल्थ इश्यूज़ अच्छा रहेगा, और जो मवेशी है, जो एनिमल हस्बेंड्री है, उनको हम लोग रिवाइव कर सकते हैं. एंड विल टॉक मोर ऑन दैट कि डेयरी डजंट मीन ओनली मिल्क, डेयरी मीन्स द अदर anything other than milk. So it's so much revenue and happy village will be happy India. And don't try to copy any western model and urbanization in a wrong way, right? लोग बोलते हैं कि poor place को urbanize कीजिए for revenue generation. I and this channel do not buy that idea. We are open for any other views. Urbanization does not help. It brings a lot of other challenges. Urban poverty is more dangerous than say a rural poverty. Rural में at least people can eat. Urban में तो it's so bad, and pollution, so many diseases. और अभी artificial intelligence आ रहा है. आपको पता है कि एक सर्वर कितना कार्बन एमिशन करेगा, कितना ग्लोबल वार्मिंग करेगा.
unbelievable. The world has not even imagined, right? So humans, it is up to you to choose आप कैसा जीना चाहते हैं and क्या legacy छोड़ना चाहते हैं. So with that, it was such an entertaining discussion with Dr. Chandrasekhar ji. I am sitting in his Bangalore home. अब देखिए कितना green है. See the greenery. He has like, you know, आप यहाँ में आएंगे तो आपको यू विल सडनली फील पॉजिटिव, यू नो, वाइब, एंड आई कैन फील दैट, राइट? सो विद दैट Every village can be like this. every village can be like this, right? So thank you, sir, so much, and we'll be talking more soon. Thank you. Thank you very much.